Hi students, hello. I'm Anand sir. Anand coaching classes Virarist. Today I am going to teach you chemistry part 2. The name of the topic is chapter number 9. The name of chapter is coordination compounds. Coordination compound. न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस में ज़्यादा कुछ फर्क तो नहीं है, लेकिन कुछ यहाँ पे टर्म्स जो है कुछ सिलेबस में थोड़ा एग्जाम्पल कुछ थोड़ा सा चेंज किया होगा, लेकिन मेरे ख्याल से तो एंट्रेंस एनडीए आईआईटी नीट सीईटी सब एग्जाम के लिए प्लस अपना बोर्ड एग्जाम, इनके पॉइंट ऑफ व्यू आई एम गोइंग टू टीच यू दिस टॉपिक्स. द नेम ऑफ टॉपिक इज व्हाट? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. Welcome to here in Anand coaching classes. All of you be ready to learn. Presenting Anand coaching classes. Anand sir to you. For queries or any doubts, you can call me or WhatsApp me here. Subject, name of subject here, chemistry part 2. Chapter name coordination compounds. Coordination, नाम में ही पता है, नाम में छुपा है. कोऑर्डिनेशन मीन्स व्हाट? कोऑर्डिनेट्स. Now coordinate compound is a chemist related to part 2. Coordination compound means what? Meanings. Coordination जैसा लैंग्वेज यहाँ पे आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंट होने वाली है. जैसा व्हेन यू आर द लिव इन महाराष्ट्र, Marathi is language of the Maharashtra. If you talk in Marathi, then Marathi people will be accept you, right? In other states, if we talk the state language will be accept you. आपको मान देंगे, सब मान देंगे. In same way, in this chapter, there is a coordination compounds. Coordination compounds. If you are talking, or if you are talking by this language means coordination compounds. ये भी language क्या है? ये language हम पढ़ने वाले हैं. So if we talk this language in coordination style, then we will understand this coordination compound chapter very well. जैसे बोला है, जैसा देश वैसा वेश. जिस देश में जाना है वैसा ही आपको उसी तरह रहना है, उसी तरह आपको बोलना है. So all of you guys remember that the sentence जैसा देश वैसा बेस, यानी कि यहाँ पे आपको लैंग्वेज वही यूज करनी पड़ेगी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. इसके पहले आपने पढ़ा होगा लेविस एसिड, लेविस बेस. Acid, what is the meaning of the acid? What is the meaning of the base? Base means according to Arrhenius theory. Arrhenius क्या बोल रहा है? Arrhenius said that the species or the compound which give the H plus ion is called as the acids, and compound which give the OH minus ion is called as the base. Also, you know Laurie-Brownstedt theory. Laurie-Brownstedt. Then Lewis came. He also defined the acid and base. What is acids? Lewis base, Lewis acid. Do you know what is the Lewis acid, Lewis base? Can you define what is the Lewis acid, Lewis base? याद करो जरा 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस. Lewis acid is a accepting electron pair acceptor.
Electron pair acceptor is called the Lewis acid, and according to Lewis base, electron pair donor देने वाले, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें लेविस एसिड, यानी कि यहाँ पे लेविस बेस मीन्स विच डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, दे डोनेट टू दिस अदर्स। लेविस एसिड, इसमें इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इनको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स, और एसिड्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल्स, ये ऑर्गेनिक में हो गया। इनऑर्गेनिक्स लेविस बेस एंड व्हाट लेविस एसिड्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं इसको? लेविस बेस एंड व्हाट लेविस एसिड। इन सेम वे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यही हम पढ़ने, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल ही है, लेविस बेस लेविस एसिड ही है, लेकिन उनका नाम अलग है बस। लेविस एसिड्स आर कॉल्ड एज लिगैंड्स, व्हाट कॉल्ड? लिगैंड्स। लिगैंड्स का अलग मतलब हम पढ़ने वाली है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, दे डोनेट द पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दे आर डोनर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर, एंड लेविस acids are the electron pair acceptor. What are they? Electron pair acceptor, that is a central metal atom. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम पढ़ने वाले इनको क्या नाम बोलेंगे? सेंट्रल मेटल एटम। और लेविस बेस को हम क्या बोलने वाले? लिगैंड्स। लेट्स अंडरस्टैंड सम बेसिक्स। आपका बेसिक परफेक्ट है तो आपको आगे का टॉपिक पूरा क्लियर होगा। सो पे अटेंशन हियर, if you not understand, go back and watch its videos again and again. This facility available here, so if you don't worry, I will explain each and every topics, each and every words meaning here, so don't worry, I will explain it. Lewis base means what? Electron pair donors. Lewis acid means electron pair acceptor. इनको ऑर्गेनिक हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल। इनऑर्गेनिक इसको बोलते हैं लेविस बेस लेविस एसिड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमें क्या बोलेंगे इनको? लिगैंड्स एंड सेंट्रल मेटल एटम। व्हाट कॉल्ड? लिगैंड्स एंड सेंट्रल मेटल एटम। सब बहुत सारे एग्जांपल्स है सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ऐसा फॉर एग्जांपल हियर Cisplatin, chemotherapy drugs, cisplatin, PT bracket NH3Cl2. These are the coordination compounds. In coordination compounds, central metal atom जो यहाँ पे लेविस एसिड एक्ट करने वाले, all these are metals and they belongs to transition elements, or they belong towards the transition elements. सब के सब कौन है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पता है आपको? पीरियोडिक टेबल, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एक्सट्रीमली लेफ्ट एस ब्लॉक, एक्सट्रीमली राइट फॉर पी ब्लॉक, एंड एट द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मिडल पोर्शन जो भी है सब उसमें मेटल्स भरे हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, व्हाट कॉल्ड? ट्रांजिशन एलिमेंट, दे आर बिलोंग टू द व्हाट? डी ब्लॉक। सबके सब क्या है? डी ब्लॉक। दे फॉर्म कलरफुल कंपाउंड, दे आर वेरिएबल वैलेंसीज आर देयर, उनके पास वेरिएबल वैलेंसी है, कलरफुल कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जे एक्ट एज अ कैटलिस्ट, और दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट। इनके कंपाउंड जो सब ब्लू विट्रियोल्स, और ब्लू विट्रियोल्स का कलर कैसा होता है? ग्रीन। कलरफुल कंपाउंड फॉर्म करते हो, मींस These are what is the central metal atom. यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या एक्ट करेंगे? सेंट्रल मेटल एटम। और यहाँ पे लिगेंड्स जो है, लिगेंड OH माइनस, CN, NH3, राइट, साइनाइड्स, Cl क्लोरीन, all these are what is the ligands. लिगेंड का मीनिंग्स बाद में लिगेंड के ऊपर मैं बहुत एक लेक्चर पूरा लिगेंड्स के ऊपर रहेगा, वो मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन इट्स। फिलहाल आप याद रखिए लिगैंड्स एंड व्हाट इज द सेंट्रल मेटल एटम। लिगैंड्स मींस नथिंग बट लेविस बेस एंड सेंट्रल मेटल एटम मींस नथिंग बट लेविस एसिड्स, जिनको हम न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल किस में बोलते हैं? ऑर्गेनिक में।
सब फॉर एग्जांपल लेविस स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे H2 वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे इनके पास क्या इलेक्ट्रॉन पेयर है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन कार्बन माइनस ये प्लस है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर इनके पास है। ये देखो यहाँ पे OH है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, यानी कि इनको चांसेस है ये क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, दे कैन बी डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे CN भी है, दे आल्सो डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दे कैन बी डोनेटेड। नाउ व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड? ये bond, all of you know ionic bond, covalent bonds. Ionic bond means by losing or gaining electrons. What is a by losing or gaining electron bond formed between the atoms, metals and what is a non-metals is known as a ionic bond. It's called ionic bond. Covalent bond by sharing of electron. The bond form is called as a covalent bond. Now, coordinate bond, what is a coordinate bond? Coordinate bond is what is a covalent bond. But here, one of the atoms share the pair of the electron. इसमें से देने वाला एक ही है, पार्टनरशिप करने वाला एक ही है, यानी एक होगा, दूसरा क्या करेगा, खाली आराम से बैठ के इलेक्ट्रॉन खाएगा। So, दो पार्टनर है, एक के पास स्किल है, एक के पास पैसा है। एक के पास स्किल है, एक के पास क्या है, पैसा है। पैसा इन्वेस्ट करना, पैसा इन्वेस्ट करेगा, और स्किल है वो अपना स्किल यूज करेगा। उसने कोई पैसा पार्टनरशिप में डाला नहीं है, लेकिन दोनों को इंपॉर्टेंस 50-50% ही रहेगा। सेम यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड मींस वन डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन कौन करेगा, एक ही एटम क्या करेगा, डोनेट करेगा। जैसा यहाँ पे डोनर कौन है और एक्सेप्टर कौन है। According to Lewis theory, acceptor is a acids, donor is a base. Means base donate the pair of electron and acid accept the pair of electron. यानी pair of electron रहेगा, one pair of electron indicate that one bond. ऐसा कोवलेंट बॉन्ड में क्या है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन फॉर्म द बॉन्ड्स। हाउ दे फॉर्म द बॉन्ड्स? Carbon and hydrogen they form the bond. Suppose carbon has how many electrons are there? 1, 2, 3 and the 4 electron in their valence shell, right? No. And hydrogen 1 electron in its valence shell. This is the electron hydrogen, and bond formed between them. This bond is called the covalent bond, right? No. What is called? Right, covalent bond. But here both the pair of electron who share, suppose this carbon share the both the pair of the electron, his 2 electron he share to any of the atoms, इसने शेयर किया एंड ये बॉन्ड इसके बीच में आ गया, राइट? ये बॉन्ड ऐसा एरो आ गया। आपने सिंगल बॉन्ड देखा, यहाँ पे डबल बॉन्ड देखा, ट्रिपल बॉन्ड देखा, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें क्या होता है, एक एरो यहाँ पे आएगा, this arrow is single arrow is there, only one arrow, only one side arrow. This indicate that what is a coordinate bond, and coordinate is bond formed between whom? Ligands and central metal atom. This bond is formed between what is the ligands and what is the central metal atom. Let's see more. Bond between ligands and central metal atom. Bond between what? Ligand and central metal atom. This bond is known as a coordinate bond. Ligand means what? Lewis base, electron pair donor, and central metal atom means electron pair acceptor. बार बार मैं आपको याद दिला दूं, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरे के पूरे बॉडी में, दिमाग में आपके वही बैठना चाहिए टिल द एंड ऑफ द चैप्टर. यू शुड नॉट बी फॉरगॉट इट्स स्टिल यू आर इन 12th. जब तक आपके पास केमिस्ट्री है तब तक आपके अंदर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहना ही चाहिए. That's why I'm trying to give you best level. So listen carefully. Bond between what? Ligands and central metal atom is called the coordinate bonds. Understand this? What is a bond between ligands and central metal atom? Ligand means what? Lewis base, and central metal atoms are Lewis acid. Ligands are central metal atom. Ligands and central metal atom, between them bond form. This bond is called what? Coordinate bonds. Ligands nothing but they are the Lewis
base. The electron pair donor, they donate the pair of electron. And Lewis acid, they are the electron pair acceptor, and bond form between the electron pair. and यहाँ पे देखो लेविस एसिड है, लेविस बेस है, लेविस एसिड लेविस बेस, जैसा कि फॉर एग्जांपल बेगर मीन्स भिखारी, बेगर भिखारी, और एक है जिनके पास क्या है, जेब है, या जिनके पास पैसा है, बेगर्स, उसके पास भीख लेने के लिए उसके पास जेब होगा, या उसके पास कोई लोटा रहेगा, या कोई इसका थाली है, तो उसके अंदर वो भीख ले सकता है। लेविस एसिड, इनके कुछ ऑर्बिट ऐसे है कि वो खाली है, एंड लेविस एसिड हुआ सेंट्रल मेटा एटम कौन है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट, यस आई एम पी ब्लॉक, लास्ट ऑर्बिट ओनली वन ऑर्बिट इज इनकम्प्लीट, डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट, लास्ट टू ऑर्बिट्स आर इनकम्प्लीट, उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, देखो, और दे नीड इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट्स, उनको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उनको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन दूसरे से वो लेंगे, लेने वाले और देने वाले रहेंगे, तो दोनों के बीच में क्या होगा, बॉन्ड ही बनेगा, राइट ना। और ये बॉन्ड कैसा बन रहा है, बाय शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन शेयरिंग करने वाला कौन है, इज वन ऑफ, दोनों शेयरिंग नहीं है यहाँ पे, याद रखो, remember this, only one atom donate the pair of electron, molecules or ion which can donate pair of electron, they are called the electron pair donor, electron pair donor are the Lewis base, a molecule or ion which can accept pair of electron, that is electron pair acceptor, and the bond formed between the electron pair donor and electron pair acceptor is called what? Is called the coordinate bonds. It's called coordinate bond. Now examples of the Lewis base and examples of the Lewis acids. Lewis base जिनके पास क्या है, lone pair of electron, for example H2, जो हमने लास्ट भी देखा था वहां पे, OH minus, CO, CN cyanide, NH3. These Lewis base, these are ligands, they may be what is positive, may be what negatives और न्यूट्रल, यानी कि उसके ऊपर चार्ज न्यूट्रल भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, मे और पॉजिटिव है। ये टाइप्स ऑफ लिगैंड में हम वापस अलग पढ़ने वाले, तो फिलहाल अभी आप एग्जाम्पल याद रखो, H2O, OH minus, CO, CN cyanide, etc. They are the Lewis base. Next is the Lewis acids. Examples of Lewis acids. Lewis acid, look at all positives, देखो, copper, ferrous, Fe2 plus, Cu3, Fe3 plus, Cu, AlF3. अब बोलेंगे AlF3 क्या है, AlF3, if you Al aluminium, suppose it's a Al aluminium, last orbit contain what is how many electrons are, 3 electrons are there, and F, 3F are there, 1, 2, 3 fluorines, or you can take the example of the BF3, right? The electrons of the aluminium, 1 electron, 2 electron, and third electron here, and fluorine last orbit contains 7 electron, so in a sharing you take the 1 electron, 1 1 1. Now think here, this aluminium at the center, अभी यहाँ पे aluminium जो है at the center, how many electrons are there now? Is it complete octets? इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, क्या फ्लोरीन ने किया है, फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी 2 पार्टनरशिप आ गए, बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन और 7 to 8 हो गए, राइट। यहाँ पे भी देखो रिमेनिंग 6 and 2 दिस आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आ गया, राइट। ये एंड फ्लोरीन कंप्लीट ऑक्टेट्स, बट अल्यूमिनियम नॉट कंप्लीट ऑक्टेट हियर, दैट इज अल्यूमिनियम को क्या है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या इलेक्ट्रॉन की जरूरत है,
he can accept the pair of electron. That's why it is a Lewis acid, guys, or it's called the Lewis acid. So A भी central metal atom की तरह ही काम करेगा. What? It also behave like the central metal atom AlF3. That's why written example of Lewis acid. क्या Cu2 plus, Fe2 plus, Fe3 plus, AlF3. Understand? Example of Lewis base, example of Lewis acid, example of Lewis acid, Lewis base. Next year, examples of the coordinate compounds. अभी bond जिनके अंदर Lewis acid, Lewis base, ligand and central metal atom bond form between them. This bond is known as a coordinate bond, and the compounds, these are the this type of the bond form. These compounds are known as the coordinate compounds. What are these examples here? In first example, I am trying to explain you who is the ligand and who is the CONH3. This is a square bracket used to indicate this coordinate compounds. Is called coordinate entity, coordinate pair ही है. इसके बारे में आपको डिटेल में पूरा लेसन इनके ऊपर है, तो पूरा डिटेल में आप पढ़ेंगे. सो डोंट वरी. एग्जाम्पल देखो CONH3. ये CO यहाँ पे CO इज अ सेंट्रल मेटल एटम. इसका वैलेंसी कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, वो हम पूरी तरह से अच्छे तरह से पढ़ने वाले हैं. CO कोबाल्ट, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 3+. यहाँ पे मोस्टली जो चार्ज होता है वही चार्ज उसका क्या बताता है, ऑक्सीडेशन नंबर. NH3, CONH3. NH3 is called as a ligand, that is a CO, central metal atom. यहाँ पे सेंटर पे कौन रहेगा, CO रहेगा. देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ CO. CO ऐसा राइट. उसके बाद NH3, इसके साथ NH3 ऐसा ज्वाइन रहेगा. NH3 6 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं किसी किसी एग्जाम्पल में. डिपेंड्स अपॉन इज द कोऑर्डिनेशन नंबर. इसको ज्वाइन करने वाले कितने चाहिए उसके ऊपर हो सकता है. CONH3 यहाँ पे 6 रहेगा शायद, 1. यहाँ पे कितना चाहिए, 6 चाहिए आई थिंक, या 3 होगा, 3 चलेगा. CONH3 3, CONH3 3 होंगे यहाँ पे. ऐसे क्या होंगे, 3 NH3 होंगे इसके साथ ज्वाइंट. अभी NH3 को क्यों लिया, क्योंकि बिकॉज NH3 का नाइट्रोजन देखो स्ट्रक्चर, NH3 का अमोनिया का स्ट्रक्चर देखा, ऐसा वाटर का स्ट्रक्चर है, वैसा अमोनिया का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो वहां पे अमोनिया कैरीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज दिस अमोनिया कैरीज, व्हाट इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. हर एक नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स. नाइट्रोजन कैरीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 2 इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, बॉन्डिंग के लिए यूज करेगा. यहाँ पे कोबाल्ट के साथ बॉन्ड करना है. कोबाल्ट कौन है, इट इज अ लेविस एसिड. एंड NH3 जो लेविस बेस न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. देखो यहाँ पे लेविस बेस, यहाँ पे चार्ज लिखा नहीं मैंने. और यहाँ पे देखेंगे Fe लेविस एसिड. यहाँ पे कौन है, Ag इज अ लेविस एसिड. यहाँ पे NH3 क्या है, लेविस बेस. Cl साइनाइड हियर, लेविस बेस. इसको लिगैंड इसके साथ अटैच रहेगा. इसके 2 स्पेयर होते हैं, इनर स्पेयर और क्या आउटर स्पेयर. जो अंदर दिख रहा है ये क्या होगा, इनर स्पेयर में, और जो बाहर दिख रहा है आउटर स्पेयर में. यहाँ पे देखो अंदर स्पेयर में ये है NH3 है, बाहर क्या है Cl है. यहाँ पे अंदर स्पेयर में NH3, बाहर कौन है Cl. ऐसे 2 स्पेयर रहेंगे. अब 1s3 वहां पे है, तो वो उसमें आप इनर स्पेयर आउटर स्पेयर क्या है, कैसे ड्रॉ करने का, कैसे अटैच रहते हैं, वो आप देखेंगे. तो फिलहाल नाउ यू डू यू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स. CONH3 थ्राइस, Cl3, Cu2 Fe, Cn6, AgNH3 2 Cl. अभी आगे पीछे क्यों लिखा है, Cl यहाँ पे लिखा है, Cu पहले लिखा है यहाँ पे, कभी कभी यहाँ पे किया सकता है, यहाँ पे Cl पीछे लिखा है. इसका भी कुछ रीजन है. दैट रीजन
हम इसका नॉमेनक्लेचर जब पढ़ने वाले हैं, नॉमेनक्लेचर पार्ट टू में यहाँ पे मतलब नॉमेनक्लेचर आएगा, नॉमेनक्लेचर भी यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, इनका नामकरण, इनका वारसा हम करेंगे। Note, Lewis acid is accepting pair of electron from each Lewis base, यानी एक रहेगा तो एक के पास से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ऐसा 2 है तो 2 के पास से कितना 4 हो गए। CO के साथ NH3 सपोज 3 ज्वाइंट है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 3 होता है। CN यहाँ पे देखो CN कितना 6 Fe के साथ ज्वाइन है, राइट, डायरेक्टली अटैच टू द Fe, जिसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट मींस डायरेक्टली अटैच, और स्क्वायर ब्रैकेट बाहर, इसका मतलब क्या हो गया इनडायरेक्टली अटैचमेंट इसका है, इनडायरेक्टली, और ये क्या हो गया डायरेक्टली। यहाँ पे इसका है FeCN जो है ये ब्रेक नहीं होगा, इसलिए इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ है, और ये बाहर है, इसका मतलब ये Cl इसके साथ से निकल सकता है बाहर इजीली। जैसा फॉर एग्जांपल NaCl आप वाटर में डालेंगे तो क्या होता है, वाटर सॉल्टी बनता है, ये तो मालूम है, बट एक्चुअली वहां पे केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकली हम पढ़ रहे हैं, केमिकली Na+Cl माइनस आयन फॉर्म होते हैं, राइट, नो, Na+ कैटायंस एनायंस मिलते हैं, राइट ना, मिलते हैं ना, और Na पॉजिटिव एंड Cl माइनस आयन। So फिलहाल now example of Lewis base, example of Lewis acid, note down this in your book, example of coordinate compounds, and here Lewis acid is accepting pair of electron from each Lewis base. Do you understand, guys? Got it? Okay, see the next types of salt. It's important here, types of salt. Types of salt, अभी this is not a topic of these coordinate compounds, but आपको ये पढ़ना क्यों जरूरी है, see, you must be know the difference between the coordinate compound, coordinate salt, simple salt and double salt. These are 3 types of the salt. Simple salt, for example हमने लिया NaCl, NaCl हम वाटर में डालते हैं तो Na+Cl- आयन फॉर्म होते हैं, कैटायंस एंड एनायंस आर फॉर्म देयर, राइट, मींस इजीली वाटर में क्या होता है, डिसॉल्व होता है। सिंपल सॉल्ट इजीली डिसॉल्व इन अ वाटर, इज अ डिसोल्यूशन। नेक्स्ट जो है डबल सॉल्ट, व्हाट इज अ डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट्स फॉर एग्जांपल्स मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट इज मेड फ्रॉम द FeSO4, मोहर सॉल्ट, देखो मोहर सॉल्ट क्या होता है, FeSO4 NaH4 twice SO4 6H2, and this dissolve in water and gives ions Fe, SO4, NH4, SO4, 6H2O, H2O, SO4, NH4, Fe, इनके आयंस फॉर्म होंगे, इसके मोहर सॉल्ट के, इज लाइट ग्रीन कलर, ये किससे बनता है, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट्स, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट दोनों को हम केमिकली रिएक्ट करेंगे तो बनेगा सॉल्ट, इस सॉल्ट का नाम क्या है, मोहर सॉल्ट, इज also एग्जाम्पल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो आपने कुछ 10 में पढ़ा होगा, राइट, यहाँ से 6 वाटर मॉलिक्यूल से निकल जाते हैं, राइट, और इसका कलर क्या होता है, कलर इस जो सोलो से जो पाउडर है या इसका कलर डिसअपियर होगा, if you again add the 6 molecule of water then again you get the light green color. This example of water of crystallization. So first our simple salt, second is a double salt. Simple salt example is NaCl, double salt example is what is the FeSO4, NH4 twice SO4 6H2O, that is a मोहर salt, इसको मोहर salt light green in color, देखेंगे हम लोग आगे इसको कैसा होता है वो। नेक्स्ट जो आपका आ रहा है कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, इन तीनों में हम डिफरेंस जरूर देखने, टाइप्स ऑफ सॉल्ट क्यों लिया, क्योंकि सिंपल सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर गिव द कैटायंस एनायंस इजीली, डबल सॉल्ट आल्सो गिव द कैटायन एनायंस इजीली, यहाँ पे Fe अलग होगा, SO4 अलग होगा, NH4 अलग होगा, वाटर मॉलिक्यूल ऑलरेडी है इसके अंदर, वो तो सेपरेट होंगे ही, राइट, दैट इज इसका यहाँ पे बताने का मेरा मकसद क्या है कि यहाँ पे जो भी आयंस है, आयंस इजीली सेपरेट हो रहे हैं, सिंपल सॉल्ट और क्या डबल सॉल्ट के आयन जो है वो इजीली क्या होंगे, सेपरेट होंगे, ये डिसॉल्व्स, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एग्जांपल सी है K4 FeCN6। नाउ
यहाँ पे आप देखेंगे कि K4 FeCN6 पोटेशियम फेरस हेक्सासाइनाइड्स, ये इसका हम नॉमेनक्लेचर बाद में देखेंगे। यहाँ पे FeCN6 ये स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर FeCN6 है, राइट। दिस CN साइनाइड इज व्हाट लेविस बेस, इलेक्ट्रॉन डोनर है। और ये कौन है, सेंट्रल मेटल एटम, इसको लेविस एसिड, ये लेविस एसिड लेविस बेस। और यहाँ पे K4J बिलोंग टू द S block elements, this S block elements, and this when you dissolve in water इसमें से K शेपेड होगा और FeCN6 यहाँ पे 4 माइनस चार्ज आएगा, कितना 4 माइनस चार्ज क्या आने वाला है 4 माइनस चार्ज -4। ये जो शेपेड होगा तो इसके ऊपर आएगा -4 चार्ज, और K प्लस क्या होगा यहाँ पे शेपेड होगा। यानी कि यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे CN जो साइनाइड डायरेक्टली अटैच किसके साथ, Fe के साथ, सो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो ये जो CN है ये CN इसके साथ अटैच ही रहेगा, ये इजीली ब्रेक होगा नहीं। जैसा NaCl डिजॉल्व होता है, Na प्लस Cl माइनस होगा, यहाँ पे Fe2 प्लस SO4 2 माइनस NH4 SO4 2 माइनस 6H2O, ये जो मॉलिक्यूल्स है सेपरेटली ये आयन फॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पे आयनाइजेशन होगा नहीं, इजीली नॉट गिव्स द आयंस, यहाँ से आयन ब्रेक होगा, लेकिन ये जो है इसके साथ अटैच ही रहेगा, इसकी अटैचमेंट इसके से स्ट्रॉन्ग है, इसी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट नहीं है। दैट्स व्हाई explain this topic at types of salt, simple salt, double salt, and is a difference there is a between the this coordination salt is it different from this simple salt and the double salt. Do you understand this? Do you understand students? Hi students, समझ में आ रहा है ना सबको? Do you understand this? Okay, समझ रहे हैं सबको? कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स नहीं ना? ओके, सीधा नेक्स्ट। और एक बात यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि आप लोग लेक्चर्स पूरा का पूरा डिटेल लेक्चर देखना है, कोई भी पार्ट यहाँ पे स्किप करने का नहीं है, विदाउट स्किपिंग यू शुड बी वॉच इट्स ईच एंड एवरी पॉइंट्स। इसमें से आप यहाँ से मैं कोई पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया, आपने स्किप किया, आगे आपको दिक्कत आएगी। दैट्स व्हाई आई से डोंट स्किप ईच एंड एवरी टॉपिक्स। आपको 2 बार 3 बार देखो, लेकिन कोई भी टॉपिक यहाँ से स्किप मत करना, जंप लेके वहां से आगे टाइम नहीं है, आगे देखते जाएंगे फटाफट, ऐसा नहीं है। हर एक पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि आगे वहां पे बहुत इसका यूज होने वाला है। सो डोंट स्किप, वॉच इट क्लियरली, एक बार 2 बार देखो, समझ में वापस देखो क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बिकॉज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ईयर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जैसा देश वैसा वेश होगा, इसलिए आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की लैंग्वेज सिंपल मेथड से मैं पढ़ा रहा हूँ। सो इट विल बी बेटर टू यू अंडरस्टैंड द होल टॉपिक्स। आगे अभी ये इंट्रोडक्शन है, तो आगे का पूरा टॉपिक आपको क्या होने वाला है, अच्छे से एक्सप्लेन होने वाला है। सो डोंट स्किप, वॉच इट, take notebook, pen and note down the points. So simple salts. If you add any water in a glass here, Na plus cations and anions are formed there, Na plus and Cl minus ion. That is the best example for simple salt is NaCl, which give the number of ions. Na plus and Cl minus ion. Brine solution यहाँ पे देखेंगे, brine solution is solution which contain 5 to 9% what NaCl in water. जो ब्राइन सोल्यूशन यहाँ पे 5 to 9% यहाँ पे क्या होता है, सॉल्ट होता है, यानी कि NaCl होगा वहां पे। इट्स अ सिंपल सॉल्ट, गिव द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, इट डिसॉल्व। नेक्स्ट जो आपका है डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट फॉर्म में क्या है, FeSO4 NH4 2SO4 6H2O, इसका कलर कौन सा है, लाइट ग्रीन। मोर सॉल्ट, this more salt also dissolve, give the Fe, यहाँ पे आएंगे क्या आएंगे Fe2 plus SO4 और क्या वाटर मॉलिक्यूल्स, इज अ डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर कंप्लीटली इन वाटर्स।
total 5 ions will be generated here. Fe, SO4, NH4 और water molecules 1, 2, 3, 4 और ये 5. These ions are formed from the more salts. Double salt is example. इसका कलर कौन सा है? लाइट ग्रीन. देखो ये लाइट ग्रीन FeSO4, NH4 2, SO4 6H2 ये फॉर्मूला है. आप इसको बायट कर सकते हो. आपके दायात का खेल है, राइट. आसानी से आपको ये लर्न कर सकते हो. दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक हियर. आप बुक्स पढ़ेंगे तो बुक्स में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन यहाँ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो हर एक टॉपिक हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ये टॉपिक इजी होगा. सो डोंट वरी. नेक्स्ट ये डबल सॉल्ट. इसमें से फर्स्ट वन जो है फेरस सल्फेट्स और नेक्स्ट जो अमोनियम सल्फेट्स, बोथ आर मिक्स टुगेदर. व्हाट फॉर्म? मोर सॉल्ट इज द फॉर्म. फेरस सल्फेट प्लस अमोनियम सल्फेट्स. इसका फेरस सल्फेट्स दिख रहा है ग्रीन कलर्स. व्हाई इज ग्रीन कलर? बिकॉज ऑफ द Fe. इसके अंदर क्या है? Fe है. बिकॉज ऑफ द Fe इट हैज अ ग्रीन कलर्स. अमोनियम सल्फेट्स जो व्हाइट कलर का है, दोनों को मिक्स करेंगे तो आपको मोर सॉल्ट लाइट ग्रीन मिलेगा. क्या मिलेगा? लाइट ग्रीन कलर का मोर सॉल्ट. देखो लाइट ग्रीन आ रहा है यहाँ पे. और ये फेरस सल्फेट ग्रीन कलर. इसका रीजन क्या है? यहाँ पे Fe जो फेरस आयन है, बिकॉज ऑफ द फेरस कौन है? सेंट्रोमेटर एटम. फेरस डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कलरफुल कंपाउंड फॉर्म करते हैं. दैट्स व्हाई कलर इज अ ग्रीन कलर. The most important fact about the potash alum. Next year, next example for the double salt is a potash alum. मालूम है पोटेश एलम क्या है? ये क्या होता है? वाटर फ्री बाय करने के लिए वो त्रुटि यूज कर देना, वही है. वाटर फ्री बाय करने बेस्ट यूज फॉर फिटकरी इसको बोलते हैं एलम. शेविंग भी करने करता है ना तो ब्लड हो जाता है, तो उसको स्टॉप करने के लिए इसका यूज करते हैं. बेस्ट यूज ऑफ द फिटकरी एलम इज अ फिटकरी. इसका फॉर्मूला K2SO4 Al2SO4 thrice 24H2 is also example of water of crystallization, राइट. यहाँ पे क्या है? KSO4 Al अल्यूमिनियम SO4 और वाटर मॉलिक्यूल ये भी आयन फॉर्म करेगा. दैट्स व्हाई इसका डबल सॉल्ट K2SO4 Al2SO4 मिक्स करके बना हुआ है. So it's called the double salt. The most important fact about the potash alum is K2SO4 Al2SO4 24H2. इसका यूज किसमें आता है? फिटकरी के लिए. यहाँ पे K क्या है? K इज अ मोनोवैलेंस. इसका वैलेंसी कितना है? सिंगल है, M प्लस. यहाँ पे एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होगा? 3 ना. मैग्नीशियम थर्ड ग्रुप में तो वैलेंसी कितना? ट्राइवैलेंस. एल्यूमिनियम इज व्हाट? ट्राइवैलेंस. और ये मोनोवैलेंस, इसलिए SO4 कितना आ गया? 3. और K के साथ SO4 कितना आ गया? 1. कार्नेलाइट्स is also double salt. KCl2 6H2 CuCl2 यहाँ पे है. is a कार्नेलाइट्स. नेक्स्ट एग्जांपल आपका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का. कोऑर्डिनेशन सॉल्ट. कोऑर्डिनेशन सॉल्ट एग्जांपल क्या है? K2FeCN6. K2FeCN6. CN is called Lewis. CN is called ligands, that is a Lewis base. Fe is called central metal atom, right. यहाँ पे FeZ इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 26. तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होगा? इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट. लास्ट के 2 ऑर्बिट क्या होते हैं? इनकम्प्लीट. इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आर्गन कॉन्फिगरेशन प्लस 4H2 3D6. 4H2 3D6. कैपेसिटी ऑफ दी ऑर्बिट इज व्हाट? 6. लेकिन तो भी यहाँ पे 2 वैलेंस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन CN6 है. CN6 मतलब एक CN कितना देगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा. तो ऐसे कितने हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन. तो 12 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? फेरस लेगा. तो 12 इलेक्ट्रॉन फेरस कैसा लेगा वो हम बाद में लास्ट के एट द एंड ऑफ द टॉपिक वहां पे हम बहुत से थ्योरी पढ़ने वाले हैं, तो वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको हाउ इट्स एक्सेप्ट द 12 इलेक्ट्रॉन. इसके कौन से ऑर्बिट वैकेंट है? वैकेंट ऑर्बिट यहाँ पे देखो 4s है. 4s के साथ
4s के साथ क्या आना चाहिए 4p। 4p में कितने होते हैं 3 ऑर्बिट में 3 p ऑर्बिटर में कितने होते हैं 3 सब ऑर्बिटर राइट। एक ऑर्बिट कैपेसिटी कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स का कैपेसिटी है राइट। तो 3 है तो कितना हो गया 6 हो गया। और डी ऑर्बिटर क्या ऐसे जितनी भी ऑर्बिट वैकेंट है तो वैकेंट ऑर्बिट खाली है उसको भरने के लिए कौन आएगा Cn। और कैसा अटैच होगा इसका स्ट्रक्चर इसका ज्योमेट्री स्ट्रक्चर इसके बॉन्ड एंगल इस सब पढ़ने वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पूरा का पूरा हम पढ़ने वाले लास्ट एंड तक पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा टॉपिक आपके बॉडी में रहेगा आपके दिमाग में रहेगा। मेरी कोशिश है कि आपके पूरा टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन करूं। देखो यहाँ पे नियन 4 ऑर्बिट सीखे रहेंगे 4 वैसे इसका यल जो है यल क्या है प्रिंसिपल कांटेक्ट नंबर अजमेरी कांटेक्ट नंबर ये पढ़ा होगा पीरियड में हमें ये 1 2 3 रहेगा। वैकेंसी यहाँ पे कितने 3 है। हियर iron behave as what Lewis acid, ferrous is behave as a Lewis acid and Cn is behave as a Lewis base and bond formed between the Lewis acid and Lewis base is called coordination bond and this salt is known as a ये आयन था आयन के साथ पोटेशियम आ गया तो ये क्या बन गया कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। तो FeCN6 आयन है। नाउ दिस iron square bracket is called as a coordination entity। यहाँ पे जो square bracket है this indicates the coordination entity coordination pair is called and then here cyanide act as a Lewis base that is a ligands and Fe is act as a Lewis acid that is a central metal atom ligand central metal atom ligand। नाम याद रखो कौन सा भी कंपाउंड यहाँ पे आ गया तो पहले सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कौन सा सेंट्रल मेटल एटम है कौन लिगैंड है राइट। डी ब्लॉक जहां पे दिखेगा तो सेंट्रल मेटल एटम ही होगा उसके साथ जो अटैच है वो क्या हो गया लिगैंड्स। साइनाइड आयन डोनेट व्हाट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू दिस फेरस ईच साइनाइड आयन ईच एक Cn कितना आ गया 2 इलेक्ट्रॉन देगा। द नंबर ऑफ इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्पेयर इंडिकेट कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितने थे Cn इसका कोऑर्डिनेशन नंबर Cn इसका क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर Cn जो है तो Cn कितना होगा Cn कोऑर्डिनेशन नंबर में नंबर ऑफ अटैचमेंट विद सेंट्रल मेटल एटम सेंट्रल मेटल एटम के साथ जितनी अटैचमेंट है लिगैंड की उसको क्या बोलेंगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना 6 है दैट्स व्हाई द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी हियर 6 गाइस और मीन हियर 6। अब ये नंबर ऑफ अटैचमेंट एक एक कंपाउंड कभी कभी दो साइड से अटैच होता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर एक ही कंपाउंड रहेगा कंपाउंड एक है लेकिन अटैचमेंट वो 2 दिखाता है तो वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 2 लेना पड़ेगा। इसमें हम टाइप्स ऑफ लिगैंड में पढ़ेंगे मोनोडेंटेट्स मल्टी बाइडेंटेट लिगैंड्स ट्राइडेंटेट लिगैंड्स डेंटेट टीथ नंबर ऑफ अटैचमेंट कितने उसके साथ Cn जो Cn का कोई प्रॉब्लम Cn का मोनोडेंटेट ही है एक ही इसका अटैचमेंट ऐसा Cn6 है दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा 6 होगा यानी स्फेयर सेंटर पे है और उसके साइड में कितने 6 Cn अटैच है और वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसका मतलब इजीली ब्रेक होंगे नहीं इजीली डिसॉल्व होंगे नहीं। So coordination number is equal to what is 6 and this always indicate the total number of sigma bond form and 6 जो है इसका मतलब यहाँ पे sigma bond कितने हैं 6 है। sigma bond pi bond मालूम है ना sigma bond means by sharing sigma bonds and pi bond is a type of the covalent bond lateral overlaps axial overlap when the axial overlap there when they are overlap axially here ये हो गया ऐसा ये एक्सियल ओवरलैप होता है ऐसा ये जो ओवरलैपिंग है इसको बोलते हैं एक्सियल ओवरलैप। तो यहाँ पे क्या आता है सिग्मा बॉन्ड आता है ठीक है सिग्मा बॉन्ड और ऑर्बिटल ऐसे है एक ऑर्बिट है और एक ऑर्बिटल है राइट बोथ आर द p ऑर्बिटल सपोज and it's overlapping this type of the overlapping is
कॉल्ड एंड बॉन्ड फॉर्म, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। और ये कब होता है, कैसा होता है, तो आपने लास्ट 11th स्टैंडर्ड में आपको मैंने पढ़ाया है। ये होता है कौन सा, पाई बॉन्ड। ओके, दिस कॉल्ड इज अ पाई बॉन्ड। इससे कोऑर्डिनेशन नंबर here 6, कोऑर्डिनेशन नंबर मीन डायरेक्ट अटैचमेंट्स। इसके CN कितने, 6 अटैचमेंट है सेंटीमीटर एटम के साथ, दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन नंबर इज व्हाट, 6। Now all D block elements are Lewis acids are there, centimeter atoms all they are examples here। देखो यहाँ पे CONH3 6, यहाँ पे CONH3 6 Cl2, इसका मतलब यहाँ पे 6 जो है NH3 डायरेक्टली अटैच टू द कोबाल्ट, राइट, ऐसा अटैचमेंट होता है इसका। सेंटीमीटर एटम कौन है यहाँ पे, कॉपर, लिगैंड कौन है, NH3, जर द लिगैंड्स। देखो लास्ट ये Cl3 का एग्जांपल यहाँ पे था, अल्यूमिनियम का ट्राइक्लोराइड्स, aluminum completes 6 electron will be in a valence, 1 2 3 4, a single bond means 2 electrons, so it not complete octets, that's why it acts as a electron, it accept the pair of electrons, so it's called a electron pair acceptor। It form the one coordinate bond to complete its octets। Whole AlH3 can also act as a Lewis acid center metal atom, or the aluminum can also act as a Lewis acid as a center metal atom। Okay, coordinate bond is a bond which covalent type bond in which both the shared pair of electron are contributed by one atom। The arrow between the Lewis base and Lewis acid represent the coordinate bond, single arrow। Lewis acid accept pair of electron from each Lewis base, they are electron pair acceptor। Examples आपको दिया था वहां पे C2 plus Fe2 plus Fe3 plus CO3 plus AlH3, they are electrophiles। In coordinate compound, Lewis acid is called as the central metal atom, CMA, central metal atom, and Lewis base donate pair of electron to Lewis acid, they are electron pair donor। What are called, they are donors। Lewis base donate pair of electron to Lewis acid, they are electron pair donor। Examples, they are nucleophiles। In coordinate compounds, they are called as the ligands। Lewis acid central metal atom, Lewis base कोऑर्डिनेट कंपाउंड में हम इसको क्या बोलेंगे, लिगैंड्स, और उनके साथ जो कंपाउंड फॉर्म होता है उनको बोलेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। Coordinate compounds are compound which centimeter atom link the number of ions or neutral molecule by the coordinate bond। Jar the example here, CONH3 Fe, यहाँ पे CO centimeter atom, NH3 6 क्या हो गया, ligands यहाँ पे है, ये है। इससे पहले भी आपको बताया था Lewis acid, Lewis base, समझ गया ना, सबको क्लियर है अब तक ये पूरा, जो भी अब तक जितने पढ़ा है वो सब क्लियर है आपको। तो हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले नेक्स्ट लेक्चर में वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये थ्योरी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल नाउ स्टडी हार्ड्स रिवाइजेस, इससे बेसिक जो था जितना था ट्राई किया मैं आपको समझने का। जैसा आपको समझ गया तो बोलो मैं समझ गया, कैसा लगा ये भी मुझे व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनल नंबर पे पर्सनली चैट करना, राइट, पर्सनली मैसेज करना मुझे कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। आपका फीडबैक्स, लाइक्स, आपके व्यूज, काउंटर व्यूज आपको देने ही पड़ेंगे, आपको फीडबैक मुझे देना पड़ेगा। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्या चाहिए, कैसा चाहिए, वो मैं कर सकता हूँ। आपको अच्छा लगा तो अच्छा बोलना, या कुछ कमी है तो भी बोल सकते हो। ओके, तो कुछ टॉपिक्स जितने मुझे एक्सप्लेन करना था इस लेक्चर में किया,
लेकिन ये लास्ट में और ही बोलता आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अच्छे से पढ़ाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझे, कोई भी डाउट आपके दिमाग में रहेगा नहीं। पूरा टॉपिक्स जब तक होगा तब तक आपको पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा एक बार। तो नेक्स्ट लेक्चर हम देखने वाले हैं वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। टिल नाउ स्टॉप हियर गाइस, ऑल ऑफ यू।